हेलो लिटिल क्यूट चैम्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। तो आप सभी बच्चे तैयार हैं मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए। लेकिन उससे पहले बच्चों हम ये समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। तो जब आप रिपीटेड एडिशन करते हो किसी सेम नंबर को तो वो बन जाता है आपका मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए देखते हैं। There are four rows of three apples each. Total number of apples 3 plus 3 plus 3 plus 3 is equal to 12. तो हमने 3 को 4 times plus किया. We read it as 4 times 3 is equal to 12. So we can also write it as 4 multiplied by 3 is equal to 12. There are 3 rows of 4 flowers each. Total number of flowers 4 plus 4 plus 4. So that is your 12. We can also write it as 3 times 4 is equal to 12, which means 3 multiplied by 4 is equal to 12. बच्चों, ये जो साइन है आपका, ये साइन है आपका मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब हम रिपीटेड एडिशन कर रहे हैं तो उसे हम समझ रहे हैं एज अ मल्टीप्लिकेशन। So multiplication is a kind of repeated addition. This cross sign is the sign of multiplication to the following. अब हम इन्हें solve करेंगे। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So what we are doing? We are adding 2 4 times. So we can all write it like 4 multiplied by 2 is equal to 8. Okay बच्चों? काउंट करते हैं कि 3 कितने टाइम्स है? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 times 3 is equal to 15. नेक्स्ट यहाँ पर आपकी 4 टॉफीज है और कितने टाइम्स है? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 multiplied by 4 is equal to 20. Okay. नेक्स्ट, इसी तरीके से बच्चों आप इन ड्राइंग्स को काउंट करेंगे, ऐड कर इस तरीके से शो करेंगे और फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। Now students, we have multiplication tables. Table of 2. So 2 ones are 2, 2 twos are 4. इसका मतलब क्या है कि 2 को हमने 2 टाइम्स प्लस किया, फिर 2 को हमने 3 टाइम्स प्लस किया, तो 2 multiply by 3 is 6. जब 2 को 4 टाइम्स प्लस किया तो 2 multiply by 4, which means 2 times 4 are 8. इस तरीके से हम इन्हें समझेंगे। अब आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, रिपीट आफ्टर मी। 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20. ठीक है बच्चों, ये था आपका टेबल ऑफ 2। आगे बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स। 2 1s are 2, यहाँ पर होगा 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10। इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। टेबल ऑफ 3, यहाँ पर भी वो सेम प्रोसेस है। 3 इट मींस 3 1s are 3। जब 3 को 2 टाइम्स प्लस करेंगे तो 3 2s are 6, 3 टाइम्स प्लस करेंगे so 3 3s are 9. Now all of you have to repeat after me. So 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27 and 3 10s are 30. Okay बच्चों, आगे बढ़ते हैं। Now we are filling the blanks. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15. इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। पहली बारी में बच्चों याद ना हो तो भी चलेगा, देख देख के लिखिए, लेकिन जब आप लिख रहे हैं तो बोलिए जरूर, तभी आपको याद होगा। आगे बढ़ते हैं। Now we have table of 4. So the same process we have here. So all of you repeat after me. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40. Okay बच्चों, आगे बढ़ते हैं। The same
exercise we have here, 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20. इस तरीके से आप इसे कंटिन्यू करेंगे. आगे बढ़ते हैं. Now we have table of 5. So 5 ones are 5, 5 twos are 10. Repeat after me. 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 sixes are 30, 5 sevens are 35, 5 eights are 40, 5 nines are 45, 5 tens are 50. And again we have same exercise. So 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, and 5 fives are 25. Next we have match and write the answer. 1, 2, 3, 4, 5. So यहाँ पर हमारे पास क्या है? 5 times 2. तो आप इसे यहाँ से मैच कर लेंगे. And you have your answer 10 and 5 twos are 10. Next 1, 2, 3, 4, which means 4 times 4. So your answer is 16 and you have to match it with it. And 4 fours are 16. इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं. Filling the boxes by using multiplication table. 2 sevens are 14, 3 sixes are 18, 5 fives are 25, 4 fives are 20, 2 eights are 16, 3 nines are 27. तो इस तरीके से बच्चों आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे. और इसके बाद आपके पास आएंगे आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यानी कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है यहाँ पर आपको मिलेंगे उसके कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन. तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही. अब आपसे मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए टेबल्स को याद करने की कोशिश करते रहिएगा. बाय बाय बच्चों.